सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य वर्मा और मैं आपको आज एनिमल टिश्यू का पार्ट एपिथेलियम पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे स्ट्रक्चर डेवलप्ड होते हैं। फिर in unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by single cells. As we all know कि in unicellular organisms all these functions like digestions, respirations, reproductions are performed by single cells, because unicellular organisms are single celled, and all these functions are based on this particular cells. Okay, in complex body of multicellular organisms, the same basic functions are carried out by different group of cells in well organized manner. As we all know, in multicellular organisms a lot of that body is made up of a lot of cells. Then the similar cells group together and perform a specific function. Okay, in multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such organization is called tissue. When two cells or more than two cells of same origin, okay, same origin विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, जिनका जैसे इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो सेम हो और उनका जो फंक्शन हो स्पेसिफिक हो, एक ही फंक्शंस हो, वो मिल के क्या बनाते हैं, वो हमारे टिश्यू बनाते हैं। तो यहाँ से हमको टिश्यू का डिफिनीशन मिल गया। क्या मिला कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सो ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। The tissue are organized in a specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lungs, heart, kidney. As we all know, cells combine to form tissue. Okay, then tissues combine to form a organ. Okay, same types of tissues. When two or more organs perform a common functions by their physical or chemical interaction, they together form an organ system. Example: digestive system, respiratory system. Okay, and different types of organs which combine to perform a particular particular function, then they form एक वन organ system. Okay, like digestive system, we can see that in digestive system a lot of organs like our esophagus, stomach, large intestines, all are in actually connected. Okay, and they form a system, that is a digestive system. Just like in respiratory system our lungs, trachea and all are connected to form a respiratory system. Okay, cell, tissue, organ and organ system split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to survival of the body as whole. It means कि all these cell, tissue, organ system जो splits होके क्या करते हैं, वो अपना division of labor show करते हैं. Now we will discuss about animal tissue. Okay, branch of biology dealing with study of tissue is called histology. Okay, histology में हम किसका स्टडी करते हैं, टिश्यू का स्टडी करते हैं. और द टर्म टिश्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बीचेट, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. तो ये टर्म टिश्यू को किसने इंट्रोड्यूस किया था, बीचेट ने, और ये बीचेट फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं. मेयर क्वाइन द टर्म हिस्टोलॉजी. ओके, मेयर जो साइंटिस्ट थे वो हिस्टोलॉजी टर्म को ये क्वाइन किए थे. फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी इज मार्सिलो मेल्फिजी. ओके, और अ टिश्यू में बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ one or more type of cells
having similar origin and specialized for specific functions or functions along with intercellular materials, as we already studied in previous slide. कि what is tissue? Tissues may be the similar or dissimilar, but their origin should be same or perform a specific functions, okay, along with intercellular material. Now let's see tissue. Animal tissue are divided in four. Actually animal tissues are four types: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue or nervous tissue, okay. In this lecture we will only study about epithelial tissue. So let's see in detail this topic. Epithelial tissue. First let's see what is epithelial tissue. An epithelium is a tissue composed of one or more layer of cells that cover the body surface and line its various cavities, okay. तो epithelium tissue क्या होता है? एक या दो लेयर के बने होते हैं, हाँ, एक या दो नहीं, एक या मोर देन वन लेयर से ये बने होते हैं और क्या करते हैं? ये बॉडी सरफेस को कवर करते हैं और इंटरनल कैविटीज को ये कवर करते हैं, ओके. इट सर्व फॉर प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड excretion. This tissue helps in protection, okay. If this epithelial tissue is present over the our body, that is our skin, that is epithelial tissue, तो वो हम क्या करते हैं? वो प्रोटेक्शन का काम करते ही हैं और उसमें से स्वेट ग्लैंड निकलता है, तो वो क्या करते हैं? हाँ, वो सिक्रीशन करते हैं, उनमें से सिक्रीशन हो रहा है और ये एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक. द वर्ड इपिथिलियम, ईपी ये ग्रीक वर्ड है. इपिथिलियम जो है ग्रीक वर्ड से है. ईपी मीन्स अपॉन, थेलेल मीन्स निप्पल, ओके. वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय राइस. ये राइस नाम के साइंटिस्ट थे जो कि वर्ड इपिथिलियम को ग्रीक वर्ड से ये निकाले थे. दे आर लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन इंक्लूडिंग द स्किन, ओके. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जैसे हम पहले डिस्कस कर ही चुके थे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी सरफेस और इंटरनल कैविटीज़ पे. तो ये ऑर्गन के सरफेस पे भी प्रेजेंट रहते हैं और ये स्किन पे भी प्रेजेंट रहते हैं. दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ ट्रैक्ट्स, कैविटीज़ एंड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें भी ये होती हैं. कैविटीज़ जो होता है बॉडी कैविटीज़, उसके अंदर भी, और ट्रैकिया के लाइनिंग्स पे भी ये प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू इवॉल्व फर्स्ट इन एनिमल किंगडम, ठीक. तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर नीट एग्जाम में आ जा रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले किस किंगडम में वो इवॉल्व हुआ था, तो हमारा होगा कि एनिमल टिश्यू में, ओके. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर. प्राइमरी जर्म्स लेयर इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ये हमारा ये जो ओरिजिनेट हुआ था एपिथेलियल टिश्यू, ओके. ओके नाउ अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा और देखा जाए. द सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, ओके. क्या कह रहे हैं? एनिमल टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर जो ये बाहर के स्पेस होता है, ये क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेलुलर स्पेस, ओके. इंटरसेलुलर स्पेस. और क्या कहता है? स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स, ओके. और ये इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ये क्या होता है? ये इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ये हमारा ये स्पेशलाइज होता है, जिससे कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये दो सेल्स जो हैं ये कनेक्ट हो पाए, ठीक है. 3 types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. कितने टाइप के सेल जंक्शंस होते हैं? 3 टाइप्स के. दो टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन, ठीक है. तो टाइट जंक्शंस क्या होता है? टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ठीक है. तो ये जैसे हम इमेज देख रहे हैं, तो इस इमेज में क्या दिखा रहा है? ये एक सेल है, ये एक सेल है. दोनों सेल क्या है? टाइटली पैक्ड है, जिससे कि
क्या होगा, इसका इंटरसेलुलर स्पेस इनका एकदम न के बराबर है, तो इनमें जो सेल से बाहर मटेरियल नहीं आ पाएगा। ओके, सील सेल्स टाइटली। फिर है हमारा एडहेरिंग जंक्शन। ओके, एडहेरिंग जंक्शंस आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच परफॉर्म सीमेंटिंग टू द कीपिंग नाइबरिंग सेल टुगेदर। ओके, ये क्या करता है इसमें आपका एडहेरिंग जंक्शंस में क्या होता है कि प्रोटीन का एक हमारा प्रोटीन से ये हमारा कनेक्टेड होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल्स होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ये क्या करते हैं, ये सेल्स मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे हमारा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडहेरिंग जंक्शंस हमारे स्टोमक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक्स के सेल्स के अंदर, जो कि क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट में हमको ये हेल्प करते हैं। ओके, फिर ये गैप जंक्शंस फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट ईच अदर by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions is a small molecule and sometimes big molecules। इसमें क्या होता है कि ये दो डिफरेंट सेल हुए, दोनों डिफरेंट सेल के साइटोप्लाज्म से एक टनल कनेक्टेड होता है। वो टनल क्या करता है, उस टनल से क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल्स में मटेरियल्स का ट्रांसफ़र को अलाउ करता है, अलाउ कम्युनिकेशन एंड मटेरियल ट्रांसफर्स। ओके, तो इसमें जैसे कि कोई आयन्स है, बिग मोलिक्यूल्स या स्मॉल मोलिक्यूल्स कुछ भी हैं, इनमें से टनल्स के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल्स जाते हैं। ओके, ये होता है हमारा गैप जंक्शंस। फिर है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो एपिथेलियल टिश्यू तो हम देख चुके थे क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारा जो बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है या किसी ऑर्गन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि हमको प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू होता कितने टाइप्स के है, एक तो सिंपल एपिथेलियम है और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम है। तो सिंपल के ये कितने ये टाइप्स, स्क्वामस है, क्यूबॉइडल है, कोलुमनार है, सिलिएटेड है, सूडो स्ट्रेटिफाइड है। और सिलिएटेड क्या है, कोलुमनार, क्यूबॉइडल, और सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाएगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम और सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, और ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड में क्या होता है, ये मोर देन वन लेयर होता है सेल्स का, और सिंपल में क्या होता है, एक ही सेल का लेयर होता है। और ये कंपाउंड हमारा दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। तो स्ट्रेटिफाइड में भी वो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनार सिलिएटेड है, जिसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। ओके, एक करके अभी हम सबको समझते हैं क्या होता है। पहला है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या है, इट इज सिंपल इन स्ट्रक्चर, बेसिकली फॉर्म बाय सिंगल लेयर सेल्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल लेयर के सेल्स के लेयर बने होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सिंपल एपिथेलियम होते हैं। ऑल सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सारे सेल्स जो होते हैं किसके ऊपर होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है हमारा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, दीज आर फाउंड एट मोइस्ट सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सरफेस। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये सरफेस हमारा मोइस्ट होता है, जहाँ पे सिक्रीशन होता है और जहाँ ये एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, फर्स्ट है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स, यूजली polygonal cells which are closely fitted together like the tiles in the mosaic। ओके, ये पोलीगोनल शेप्स के होते हैं ये, और इसके बाद ये टाइटली पैक्ड होते हैं, एक से एक जो सेल्स हैं ये टाइटली पैक्ड होकर क्या बनाते हैं, हमारा ये बनाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, जिसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम, इसको और पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, पेरिटोनियम, प्लूरुला और बोमेंस कैप्सूल्स, थिक सेगमेंट्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड लंग्स एल्वियोलाई के अंदर भी ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये सब भी सारे इंपॉर्टेंट्स है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर ये हमारा
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है? द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ वन लेयर ऑफ क्यूबॉइडल शेप्ड सेल रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो ये कैसे होते हैं? ये भी वन लेयर सेल्स होते हैं क्यूब शेप्स के, और ये किस पे रेस्ट करते हैं? ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, जो कि कैसे होते हैं? वो फ्लैट शेप्स के होते हैं, फ्लैटेड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? पॉलीगोनल फ्लैटेड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये क्यूबॉइडल होते हैं। न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड सेंट्रली, इसमें न्यूक्लियस कहाँ पे? सेंट्रली प्रेजेंट रहता है। ओके, और द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, थायरॉइड वेसल्स, पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिंथ, पीसीटी डीसीटी, ये जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पीसीटी डीसीटी ये हमारे नेफ्रॉन्स में होते हैं। ओके, ओवेरीज के में भी ये प्रेजेंट होते हैं हमारा ये लेयर, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, सिलियरी बॉडीज, कोरोइड, आइरिस ऑफ आई, थिन ब्रोंक्यूल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स ऑफ मेमेलियन स्किन, ये सारे के अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। तो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम हम ऐसे बेसिक इसको समझने की कोशिश करें। जैसे क्यूबॉइडल होता था, तो ये कैसा शेप में होगा? कोलुमनार शेप में होगा, मतलब सिलेंडर शेप में होगा। तो जैसे हमारे सिलेंडर शेप में ये प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियाई कहाँ पे होता है? इसका बेसमेंट की तरफ इसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। और क्यूबॉइडल में कहाँ प्रेजेंट था? सेंट्रली था। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, पता ही हमको। अगर सिंपल है तो कैसा होगा? सिंगल लेयर होगा। मैनी ऑफ विच हैव मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, और ये जो हमारे कोलुमनार एपिथेलियम, इसके बहुत मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे 3 कॉमन मॉडिफिकेशन क्या होता है? गोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, या सिलिया प्रेजेंट होता है, या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो गोबाल्ट और सिलिया और माइक्रोविलाई के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सबके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम स्टमक और इंटेस्टाइन में। और इन जैसे कहाँ पे? जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? इनर लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है, बाइल डक्ट्स में ये प्रेजेंट रहता है। ओके, और इट ऑल्सो अकर इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पेनक्रियाटिक लोब्यूल्स के अंदर, ये सारे के सारे के अंदर ये हमारा प्रेजेंट रहता है कोलुमनार एपिथेलियम। फिर है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड से क्या हमको पता चल रहा है? सिलिया क्या होता है? सिलिया एक हमारा हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इट बियर न्यूमरस डेलिकेट हेयर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड सिलिया अराइजिंग फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल विच हेल्प टू क्रिएट करंट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारा बेसल ग्रेन्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। द सिलिएटेड एपिथेलियम इज ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप्स के होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक, तो पहला क्या है? सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, जो कोलुमनार के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो कोलुमनार एपिथेलियम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे वो होते हैं? हमारे सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। इट लाइन्स द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये कहाँ पे? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। और लोअर एंड ऑफ ब्रोंकाई में फ्लोपियन ट्यूब्स, ये जो हमारा क्या होता है? ऐसे इनफंडिबुलम शेप्स के, फिर ये हमारा ये फ्लोपियन ट्यूब जाता है, जो कि हमारा यूट्रस से कनेक्ट होता है। इसके अंदर फ्लोपियन ट्यूब्स में ये क्या होते हैं? सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इनका क्या फंक्शंस होता है? जो भी हमारा एग निकलता है, एग जो जाता है, तो क्या होता है? एक को ये ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि अपना हेयर लाइक स्ट्रक्चर से इसको पुश करके आगे भेजता है। ओके, और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है। और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, टिम्पैनिक कैविटी, सबके अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है? सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कैसे है कि सिलिया प्रेजेंट्स हैं कोलुमनर सेल्स के ऊपर, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है कहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन के साइड में, सेंट्रली लोकेटेड कहाँ पे होता है? क्यूबॉइडल में। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, ये सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम।
उसके बाद है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, से में सही होगा, और क्यूबॉइड के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक। और इट अकर इन सर्टेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, और ये किडनी के नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स में ये पाए जाते हैं हमारे क्या, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर ये हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, इसको देखते हैं। इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इरेगुलरली शेप्ड कोलुमनार सेल्स टचेज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कैसे होते हैं, ये तो हमारे सिंगल लेयर के ही होते हैं। ये कैसे, ये सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, हाँ ये भी हमारा सिंगल लेयर है। तो ये कोलुमनार सेल होते हैं जो कि हमारे सिंगल लेयर के होते हैं, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। द लॉन्ग सेल्स हैव ओवल न्यूक्लियाई एंड द शॉर्ट सेल्स हैव राउंडेड न्यूक्लियाई। ओके, जो ये लॉन्ग सेल्स हैं उसमें कैसे हैं, ओवल न्यूक्लियाई हैं, और जो ये शॉर्ट सेल्स हैं इसमें कैसे हैं, ये लॉन्ग सेल्स में ओवल हैं और शॉर्ट सेल्स में राउंडेड हैं। ऑल्थो एपिथेलियम इज वन सेल थिक बट इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये जो जितने ये सब ये सेल्स प्रेजेंट है ये तो वन सेल्स हैं, लेकिन ये देखने में कैसे लग रहे हैं, ओके। अगर ये बड़ा छोटा, अगर अनमैनर्ड ये सिचुएटेड है तो कैसे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं ना कि स्ट्रेटिफाइड है, कि ये डबल लेयर है या ट्रिपल लेयर है। लेकिन ये कैसे हैं, सारे के सारे सेल हम जैसे ध्यान से देखेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, ओके। तो ये होते तो सिंगल लेयर हैं, बट ये कैसे दिखते हैं, स्ट्रेटिफाइड की तरह दिखते हैं। तो इसको हम इसी वजह से क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं, ओके। हेंस इट इज कॉल्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। म्यूकस सिक्रेटिंग गोबाल्ट सेल्स आर न्यूमरस एंड सिलिया आर प्रेजेंट, ओके। जैसे ये गोबाल्ट सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, पहले हम स्टडी किए थे ना कि उनका मॉडिफिकेशन होता है, जैसे गोबाल्ट सेल्स होते हैं और कुछ पढ़े थे। और तो जैसे ये गोबाल्ट सेल्स हैं तो गोबाल्ट सेल्स प्रेजेंट है, और गोबाल्ट सेल्स का क्या काम है, म्यूकस को सिक्रीट करना, ठीक है। और सूडो स्ट्रेटिफाइड जो हमारे एपिथेलियम के था, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम और सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। इससे तो प्रेजेंट हो जा रहा है, तो ऐसा कोलुमनर सेल्स होंगे जिसके अंदर सिलिया प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर सिलिया प्रेजेंट नहीं होंगे। इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई। जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम में कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ट्रैकिया के लाइनिंग पे और ब्रोंकियाई के लाइनिंग पे पाए जाते हैं। और ये जो हमारे सिंपल है जिनके अंदर सिलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इट इज़ फाउंड सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन मेल यूरेथ्रा एंड पेरोटाइड सलाइवरी ग्लैंड वॉश डिफरेंस और एपिडिडाइमिस के अंदर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, ओके। फिर ये हमारा कॉम्पाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम पढ़ लिए और हम कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे। तो कंपाउंड एपिथेलियम तो हमको पता ही है क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर था, तो इसमें मोर देन 1 लेयर्स होंगे, ठीक है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स होते हैं। बेसिकली फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 लेयर ऑफ सेल्स, इनमें 2 और 2 से अधिक लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, द सेल्स इन द डीपेस्ट लेयर आर कॉलुमनार और क्यूबॉइडल विथ ओवल न्यूक्लियाई। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं कैसे होते हैं, पहले ये कॉलुमनार शेप के होते हैं और क्यूबॉइडल शेप्स के होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ये सरफेस से बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर, ये जर्मिनेटिव लेयर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इन द सेल्स ऑफ दिस लेयर डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म न्यू सेल्स, ओके। तो ये क्या करती है, डिवाइड होते हैं माइटोसिस से और क्या बनाते हैं, ये 2 सेल्स बनाते हैं। तो ये इनका क्या है, जर्मिनेशन क्या होता है, 1 से 2 सेल्स को बनाना। तो ये कैसे सेल्स हुए, हमारे जर्मिनेटिव सेल्स हुए, जो क्या करते हैं, नए नए सेल्स का फॉर्मेशंस करते रहते हैं, ठीक है। फिर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम कैसा होता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स
with typical flanted squamous cells at the free for outer surface of the seed। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये मल्टीपल लेयर के होते हैं और इसमें फ्लैटेड स्क्वेमस सेल्स होते हैं, कहाँ पे, सरफेस पे, फ्री सरफेस पे, ठीक ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ केरेटिन इन दिस सेल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रोटेक्टिव क्वालिटीज ऑफ स्किन कवरिंग द बॉडी सरफेस। और इनके ऊपर वाले जो सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हाँ, केरेटिन प्रेजेंट होते हैं। और केरेटिन क्या करता है, हमको ये हमारे बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि क्रिएटिन कैसा होता है, क्रिएटिन वाटर प्रूफ होता है और वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक। क्रिएटिन इज अ डेड एंड वाटर प्रूफ, सो इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम द एब्रेशन एंड इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल एपिडर्मिस ऑफ द स्किन ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स। लैंड वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, हम भी आते हैं लैंड वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि हम लैंड पर रहते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसको क्रेटिनाइज सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे ये क्या है, हॉर्नी स्केल्स हैं। हॉर्नी स्केल्स क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये कैसे हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे हम पिछली में पढ़े थे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में पढ़े थे कि कोलुमनार और क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसमेंट के पास प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम क्या होता है, जर्मिनेटिंग का काम होता है, जो कि सेल डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जर्मिनेटिंग लेयर हैं, जो कि डिवीजन करके नए नए सेल्स ये बनाते रहते हैं, ओके। फिर ये हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइज्ड, फिर ये हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो उसमें केरेटिन प्रेजेंट था और इसके अंदर आउटर सरफेस पे केरेटिन प्रेजेंट नहीं होगा। इट्स फ्री सरफेस इज मॉइस्ट, इसका ऊपर का सरफेस कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, उसका स्केली होता था अगर उसमें केरेटिन प्रेजेंट था तो। एंड द आउटर एपिथेलियम सेल्स अनलाइक दोज फाउंड इन द स्किन डू नॉट कंटेन केरेटिन। और उसके तरह जैसे वो केरेटिन प्रेजेंट रहता था, इसके आउटर सेल्स में केरेटिन प्रेजेंट नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम सर्व्स अ प्रोटेक्टिव फंक्शंस, ओके। और ये भी क्या करते हैं, एपिथेलियम प्रोटेक्टिव फंक्शंस काम करते हैं उन्हीं की तरफ। इट इज़ फाउंड लाइनिंग द ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी जो बकल कैविटी है मुंह के अंदर है, ये प्रेजेंट होता है। फैरिंग्स, इसोफेगस, एनल कैनाल, लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, वोकल कॉर्ड्स, वजाइना, सर्विक्स, लोअर पार्ट ऑफ यूटरस, जो सर्विक्स है लोअर पार्ट ऑफ यूटरस होता है, और कर्निया ऑफ द आइज के अंदर ये हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका भी अल्टीमेट काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्टिव फंक्शंस इनका भी होता है। फिर है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर रोज ऑफ लो क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स विच आर अरेंज रेंडमली ओवर अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो सिंपल में सिंगल लेयर होते थे, इनमें क्या होगा, मोर देन वन लेयर होगा। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो क्या है हमारा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे क्यूबॉइडल सेल्स होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे। इट इज़ फाउंड इन द स्वेट ग्लैंड डक्ट्स, लार्जर सलाइवरी पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और ये लार्जर सलाइवरी जो डक्ट होते हैं और पेनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे होते हैं, और ये स्वेट ग्लैंड के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। तो फिर स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम के बारे में स्टडी करते हैं। ये भी इट इज़ अ प्रोटेक्टिव एपिथेलियम हैविंग मल्टीपल लेयर ऑफ कोलुमनार सेल्स। ये भी कैसे होते हैं, मल्टीपल लेयर होते हैं कोलुमनार सेल्स के। ओनली द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स आर ट्रूली कोलुमनार इन अपीयरेंस। और जो इनका जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वही ट्रूली दिखाई पड़ता है कि ये कोलुमनार है, बाकी सब नीचे दब दब के थोड़े क्या हो जाते हैं, थोड़े क्यूब शेप्स के हो जाते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और जो सबसे ऊपर वाले सेल्स हैं वही ट्रूली दिखाई पड़ते हैं कि ये कैसे सेम है, कैसे हैं, कोलुमनार है। ठीक है, एपिथेलियम ऑफ दिस टाइप रेयर। ठीक है, और जो इस टाइप के एपिथेलियम्स हैं बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। इट इज़ फाउंड इन मेल यूरेथ्रा एंड इन द म्यूकस लेयर नियर द एनस। ठीक है,
और ये मेल यूरेथ्रा के अंदर और म्यूकस लेयर एनस के पास ही होता है। इट ऑल्सो लाइन्स मेमरी ग्लैंड डक्ट एंड एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस और मेमरी ग्लैंड को भी ये लाइनिंग करता है। फिर है हमारा स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। तो फिर आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ कोलुमनर सेल्स विथ सिलिया। तो इसमें क्या होता है, जब सबसे ऊपर वाला लेयर होगा वो कोलुमनर सेल्स के होंगे और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, सिलिया प्रेजेंट होंगे। सेल्स फंक्शन बोथ इन प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन लाइन्स लेयरिंग्स एंड द सॉफ्ट प्लेट, ये लेयरिंग्स और सॉफ्ट प्लेट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको ये लाइनिंग करते हैं। और इनके ऊपर जो होता है, ऊपर वाला सेल कैसे होता है, कोलुमनर शेप्स के होते हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सिलिया का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, जितना स्ट्रक्चर हम पढ़ें सारे के सारे स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख के बनाइएगा, और सारे के सारे स्ट्रक्चर हमारे इम्पोर्टेंट है। जैसे यही वाला स्ट्रिएटेड कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम का ये स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है, ऊपर क्या प्रेजेंट है, सिलिया प्रेजेंट है जैसे हम स्टडी किए हैं। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, कोलुमनर सेल्स हैं। कोलुमनर सेल्स को हम अच्छे से देखें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसके नीचे वाले सेल्स कैसे हैं, किस शेप में, पॉलीगोनल शेप के हैं, पॉलीगोनल शेप के हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये सब बाहर का एरिया क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। और जो लास्ट का ये लेयर हम पढ़े हैं, ये क्या होते हैं हमारे, ये लेयर कौन से होते हैं हमारे, ये हमारे जर्मिनेटिव लेयर होते हैं, जो कि किसके, क्यूबॉइडल और कोलुमनर एपिथेलियम के बने होते हैं जो ये। ठीक, और ये सब सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। और सारे स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से पढ़ के अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली स्ट्रक्चर दे देगा और पूछ देगा कि ये 4 ऑप्शन दे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर या किस एपिथेलियम का है, एपिथेलियम के कौन सा ये टिश्यू है। तो हमको अच्छे से इन सारे के बारे में स्टडी करना है। फिर ये हमारा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक टाइप से देखा जाए तो ये हमारा स्पेशल एपिथेलियम होता है, और इसको क्या बोलते हैं, यूरोथेलियम यूरोथेलियम के नाम से भी ये जाना जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का ये टाइप्स होता है। This tissue consists of multiple layer of epithelial cells which can contract and expand in order to adapt to degree of destination needed. Okay, transitional epithelium lines the organ of urinary system, urinary bladder, ureter and renal pelvis, and is known as यूरोथेलियम। क्योंकि यूरोथेलियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे ये करता है, यूरिनरी सिस्टम को ये लाइनिंग करता है। जैसे यूरिनरी सिस्टम में कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेटर में और रीनल पेल्विस में। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप्स के हैं, जो कि कहाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है। फिर ये हमारा न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी से हमारा क्या पता चल रहा है कि ये ऐसा जगह प्रेजेंट होगा जहाँ पे सेंसेशन होता हो, सेंसरी ऑर्गन के पास प्रेजेंट होगा। ओके, और न्यूरोसेंसरी लगा है, तो न्यूरो से हमको क्या पता चल रहा है, न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक, दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलुमनर सेल्स एंड लॉन्ग इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल्स। ओके, ये टिश्यू कैसे मॉडिफाइड होते हैं, कोलुमनर सेल्स में एंड लॉन्ग इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल्स में। टिप्स ऑफ ईच न्यूरोसेंसरी सेल्स कंसिस्ट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सेंसरी हेयर विच आर सेंसिटिव इन नेचर। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेंसेस को ये फील करते हैं, या सेंसेस को ये कनेक्ट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोई भी सेंसेशन आता है तो। दिस टिश्यू इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ टंग, नेसल कैविटी और इंटरनल एयर। ठीक है, तो हमारा सेंसरी ऑर्गन ये टंग भी है, नेसल कैविटी भी है और इंटरनल एयर भी है, इंटरनल ईयर भी है, सेंसरी ऑर्गन्स ये सब। और इनके सरफेस के ऊपर क्या होता है, हमारा न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। फिर है हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंट क्या करता है, पिगमेंट्स कलर देते हैं, तो ये ऐसे एपिथेलियम होंगे जो कि कलर देते होंगे। ठीक, तो द एपिथेलियम सेल्स ऑफ द बेसल लेयर
ऑफ रेटिना कंटेन पिगमेंट्स। तो रेटिना के जो बेसल लेयर होता है क्या करता है, पिगमेंट वो कंटेन करता है, जो कि पिगमेंट क्या करता है, वो हमारे आई का कलर देता है, राइट। हैंस द लेयर ऑफ द ऑफ्टन रिफर एज द पिगमेंटेड एपिथेलियम। वो उस लेयर को क्या बोलते हैं हम, पिगमेंटेड एपिथेलियम बोलते हैं। पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, आइरिस और स्किन के ऊपर ये क्या हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। स्किन में भी हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या देता है हमको, कलर देता है स्किन का। कौन सा पिगमेंट होता है, मेलेनिन होता है, ओके। मेलेनिन अगर किसी में ज़्यादा होगा तो उसका कलर डार्क होगा, और जिसमें कम होगा उसका कलर वाइट होते जाएगा। फिर ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल से क्या हमको पहले भी पढ़े थे, जर्मिनल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में जो कोलुमनर और क्यूबोइडल थे, क्या थे हमारे, वो जर्मिनेटिव टिश्यू थे। तो जर्मिनेटिव क्या होता है, जर्मिनेटिव सेल्स क्या होते हैं, जो कि नए सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, स्पेशलाइज्ड क्यूबोइडल सेल्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमिट्स एज फाउंड इन गोनैड्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, गोनैड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गोनैड्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे हमारे जो गैमिट्स बनते हैं, जो कि मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स बनते हैं, वो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हमारे गोनाड्स बोलते हैं। वहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूसेस गैमिट्स, एग्जांपल ओवा। ओवा किसमें, फीमेल गैमिट्स है, और स्पर्म जो क्या है, मेल गैमिट्स है। स्पर्म में मेल होता है और प्रोड्यूस होता है, और फीमेल में ओवा प्रेजेंट होता है। कौन प्रोड्यूस कराता है, जर्मिनल एपिथेलियम कराता है, ठीक। तो एपिथेलियल टिश्यू तो हम यहाँ पे सारे के सारे कवर कर लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारे एपिथेलियम टिश्यू से ही कनेक्टेड है, ग्लैंड्स, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि ताकि किसी और को बेनिफिट हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट हो पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ जो कि आपको आगे हेल्प करे। थैंक यू सो मच, आपको आपने पूरी वीडियो देखी।